morning, students. Here I am Dhiren Misra again in front of you with the same chapter and with different topic. Okay, the chapter is same, manufacturing industry, and today I am going to cover two topics in agro-based industry, jute as well as sugarcane. Students, in the previous lecture we had discussed about the agro-based industry, and in that agro-based industry we had discussed about the cotton textile industry as well as आपका factor locating for the industry. These were the topics which we had covered in the previous lecture. In this lecture, I am going to cover two industries which are agro-based industries, and they are the important part of our economic development. The first topic is jute and second is sugar industry. बेटा जूट इंडस्ट्रीज के बारे में लोग पढ़ते हैं. इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. आई थिंक दैट कि अगर आपके जहन में जूट जाता है तो फिर एट फर्स्ट यू विल बी इन डिलेमा कि व्हाट इज जूट, है ना. जूट आपका इट इज आल्सो नोन एज पटसन. ओके, आपने जूट की बोटियाँ देखी होगी, है ना. इट इज यूज फॉर इन द बैग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैग मेट, है ना. देन आफ्टर दैट इट इज आल्सो यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट. So these are the different uses of jute. We will study ki what are the feature of jute. Why? Second, the area. Which are the area where the jute industries are located, and why the jute industries are located in this area. Factor contributing for the location of the industries. Then what are the problems faced by the jute industry, and in which country the jute industries are exported, and how these are in. How the raw jutes are exported from which country. So dear students, let's begin our lecture. At first, jute industry, feature of jute industry. The first feature is that India is the largest producer of raw jute, कच्चा jute, है ना. India is the largest producer of raw jute. Second largest producer of जूट आफ्टर बांग्लादेश, है ना. हम जूट के मामले में क्या है कि हम लोग जो है दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं जूट के मामले में. रॉ जूट की बात कर रहे हैं. जूट से बने हुए सामान के उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो वी आर इन द सेकेंड पोजीशन. स्पेशली द क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट, स्पेशली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना. भारत का जो उत्तर पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द हब ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जूट. There were certain problems which came after independence. We will discuss those problems later. लेकिन at first the jute producing area is concerned, so India is the second largest producer of jute, as well as India is the second largest producer of the jute things made by jute. Second feature is that industries many located in the West Bengal along the Hooghly River. The area where most of the jute industries or the jute producing areas are located in the West Bengal, and in the West Bengal it is located on the Hooghly River, on the bank of Hooghly River. But if you talk about the Hooghly River, there are 93 mills are located. There are hundreds of mills are located in the area of 93 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर ब्रॉड, है ना. अब देखो 93 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े जो एरिया है, उस एरिया में आपके hundreds of jute mills are located. What is the reason behind that? है ना. We will discuss the reason. The reason is that कि Hooghly provide आपका water for the production of jute as well as for the converting the jute into jute fiber. We need water, and Hooghly River provides large amount of water, है ना. For the processing of jute, you can use that word, processing of jute, raw jute into jute fiber. We need water, and Hooghly River is the area where the large amount of jute mills
and jute producing areas are located. So क्या हमने पढ़ा कि jute mills are located along the in the West Bengal along the Hooghly River. This question always came in the examination कि why large amount of jute mills are located on the bank of Hooghly River. The reason is that कि jute mills jutes are produced in this river, as well as the processing of jute is also available in the bank of Hooghly River. That's why large amount of jute industries are located in this river. Next beta, what are the area? Which are the area where the jute industries are located? Where the jute industries as well as jute producing area. देखिए, jute industries will be located in those areas where the jutes are produced. So first area is West Bengal, as we discussed already. West Bengal is the area where jute industries are located. These are the area of the production of jute. Second is आपका आंध्र प्रदेश है ना, just see on the in the map I have located. आंध्र प्रदेश is the other area. Then बिहार का भी पार्ट है जहाँ पे जूट की खेती ज़्यादा होती है। देन अपना उत्तर प्रदेश का भी पार्ट है। आप लोग सोचोगे भाई उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होती है फिर भी यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता है? नो, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लार्ज अमाउंट ऑफ जूट्स आर प्रोड्यूस्ड। देन आपका उड़ीसा आपका हर साल बाढ़ से और तूफान से प्रभावित होता है। दिस पार्ट इज आल्सो लोकेटेड इन दोज एरिया। असम एंड त्रिपुरा। बेटा you just notice one thing that कि jutes are producing in those areas which receive large amount of rainfall. तो by this we can get two things. पहला कि jute is a crop which need large amount of rainfall और secondly jute is a kharif crop. Jute is a kharif crop और दूसरी बात क्या है कि जूट आपका वहाँ पे होता है जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा आया है। तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो यहाँ पे जूट की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जूट के उत्पादन में कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट है। कहने का मतलब ये है कि व्हाई द जूट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन दीज स्टेट, है ना। इस स्टेट में जूट की इंडस्ट्रीज को कंसंट्रेशन के का कारण क्या है? द फर्स्ट फैक्टर इज दैट कि वाटर फॉर द प्रोसेसिंग। पहला आ गया ना, पानी ही है इसका, है ना। बिन पानी सब सून मीन्स जूट, वी कांट एक्सपेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ जूट, प्रोसेसिंग ऑफ जूट विदाउट वाटर, है ना। तो वाटर फॉर द प्रोसेसिंग इज अवेलेबल इन दिस स्टेट। दिस स्टेट लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स आर देयर, as well as this state also get large amount of rainfall, and because of water, because of rainfall, because of flood, the area, the fields they remain आपका fertile. alluvial plain plain डेवलप यहाँ पे होता है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है जिसके कारण जो एरिया होता है दिस एरिया रिमेन फर्टाइल और जिसके कारण यहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। फर्स्ट इज वाटर फॉर द प्रोसेसिंग। ओके, द सेकेंड इज चीप लेबर। इफ यू टॉक अबाउट बेटा कि ये जो स्टेट आपके हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम, ये सभी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपके यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ चीप लेबर अवेलेबल। दीज स्टेट्स आर थिकली पॉपुलेटेड, बड़ी पैमाने पर जनसंख्या यहाँ पे है ना। और जनसंख्या होने के कारण क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चीप लेबर आर आल्सो अवेलेबल। चीप लेबर देखो बेटा, फॉर द प्रोडक्शन शोइंग ऑफ जूट टिल द हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक आपने व्हीट के लिए आपने थ्रेशर कल्टीवेटर मंगवा लिया, थ्रेशर मंगवा लिया। नो, वी कांट डू दिस थिंग इन जूट। इसमें जूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव नीड द हैंड लेबर। तो हैंड लेबर के लिए चीप लेबर चाहिए, सस्ता और स्किल्ड लेबर जो कि खेती कर सकते हो। तो वेस्ट बंगाल इज स्टेट, आंध्र प्रदेश भी है, बिहार तो आप जानते हो, यूपी भी है ना, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, त्रिपुरा। दीज आर द स्टेट वेयर द चीप लेबर आर इजिली अवेलेबल। ठीक है, और तीसरा कारण हमारा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। हमने आपको पहले ही बात किया था कि ऑल द इंडस्ट्रीज नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एंटरप्रेन्योर्स नीड मनी एंड एंटरप्रेन्योर्स विल गेट मनी फ्रॉम द बैंक, है ना। तो अगर आप इन सब स्टेट की बात करते हो तो द कैपिटल ऑफ द स्टेट आर वेरी कमर्शियल कैपिटल, दे आर सम ऑफ द कमर्शियल कैपिटल, है ना। वहाँ पे बड़ी पैमाने पर बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल है। बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल है मीन्स द एंटरप्रेन्योर्स दे गेट मनी इजिली, दे इंश्योर द क्रॉप,
है ना। इंश्योरेंस भी आप अपने क्रॉप करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर बाय द वे आपका क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो सकता है, इन दैट केस दे कैन गेट द मनी फ्रॉम द बैंक। तो बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दो स्टेट। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो कैपिटल आंध्र प्रदेश, ये आपका कलकत्ता बिग कैपिटल, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, देन आपका त्रिवेंद्रपुर, आपका असम का दिसपुर हो गया। दिस स्टेट्स आर these capitals are the hub of banks. So banks are available, and by through the bank they also get insurance. Okay, so these are the factors which are applicable for the production of jute. And the last factor is port facilities. Port facilities, देखिए port facilities का मतलब हम लोग बोलते हैं मार्केट एंड पोर्ट फैसिलिटीज में you must think that कि most states are आपका these states are located on the coastal region, है ना। coastal region पे ये स्टेट आपके लोकेट हैं। coastal region पे लोकेट होने के कारण जो है after manufacturing the goods we can easily export to the other countries, है ना, अदर कंट्रीज एज अ मार्केट। दूसरे देशों में हम मार्केट रूप में इसको भेज सकते हैं। जैसे आपका थ्रू वेस्ट बंगाल हमने क्या कर दिया, कलकत्ता के माध्यम से हमने इसको भेज दिया आपका इन द ईस्टर्न एशिया, है ना। उड़ीसा के माध्यम से हमने ईस्टर्न एशिया भेज दिया, आंध्र प्रदेश के माध्यम से भेज दिया, तमिलनाडु के माध्यम से हम लोग ने वेस्टर्न एशिया को भेज दिया। एंड बाय दैट वी कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ इन फॉरेन करेंसीज। ठीक है, देखो बेटा, आई टोल्ड यू अगेन कि प्रोडक्शन हैव नो मीनिंग until and unless we are exporting it and get it and provide it in the market, है ना। सामान उत्पादन का वैल्यू तभी तक है जब तक उसका पैसा है, जब उसका पैसा है, और पैसा आएगा when we export it, when we sell it in the market, तभी तो हमारे जो किसान हैं और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं they will be benefited and they will come for the production of large amount of things. Okay, so these are the factors ना। पहला फैक्टर है कि जूट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द प्रोसेसिंग। पहला इस सभी स्टेट में पानी की कमी नहीं है। सेकंड, चीप लेबर चाहिए। थर्डली, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज अवेलेबल इन दोज एरिया। एंड आपका लास्टली है पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स और इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल फॉर द जूट इंडस्ट्री। तो दीज आर द फैक्टर। Okay, now after that the next is problem. What are the problem faced by jute industries? This is very big question in first of all. देखिए, जूट का डिमांड आपके मार्केट में बहुत ही कम है। What are the reasons behind that? क्या आपके यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन नहीं होता या आपका डिमांड नहीं है ना। डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका उसके ऊपर हमारी जो निगाह है वो बहुत ही कम होगी। तो प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम है लेस इन डिमांड। लेस इन डिमांड, द थिंग्स मेड बाय जूट हैव ए लेस डिमांड इन द मार्केट। पता नहीं क्यों इसका डिमांड बहुत ही कम है। कहने के लिए जूट इज अ नेचुरल फाइबर, जूट इज अ नेचुरल फाइबर एंड कॉज 0% पोल्यूशन इंस्टीड ऑफ दोज थिंग्स विच वी आर यूजिंग नाउ अ डे। आप लोगों का स्कूल बैग है ना, आप लोगों का जो घर पे इस समय बोरिंग बस्ता आ रहा है, आप लोग जो आलू वगैरह अपना पॉलिस्टर में डाल रहे हो या गेहूँ वगैरह डाल रहे हो, फॉर दैट यू नीड योर फादर और योर पेरेंट्स दे बाय द बैग मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। कांट वी बाय द बैग मेड ऑफ द जूट्स? वी कैन, बट वी गेट ऑल दिस सिंथेटिक फाइबर वेरी इजीली, है ना, हमें आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा आप कारपेट हो गया, देन हमने बात किया मेड की बात किया, एंड अदर थिंग्स दीज आर बीइंग मेड बाय द अदर थिंग्स नॉट बाय द जूट। तो डिमांड हमारे मार्केट में जूट का बहुत ही कम है ना। डिमांड तभी होगा ना कि जब आप उसके लिए पैसा पेमेंट कर सकते हो। पैसा ही नहीं आपके पास, मीन्स यू आर नॉट एबल टू परचेज ऑल दिस थिंग, है ना। तो डिमांड इज लेस। नेक्स्ट इज आपका हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट we for the production of jute, for the processing of jute, and we need large amount of money, है ना। उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक और सामान बनाने तक we need large amount of money, and because of this large amount of money, other farmers and the industrialists they denied वो क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं कि हम जूट का उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि लाभ क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। क्योंकि जो भी लाभ मिल रहा है उसमें ज़्यादा पैसा वो क्या कर दे रहे हैं, लागत में लगा दे रहे हैं, है ना। द अमाउंट ऑफ मनी विच दे गेट इन फ्रॉम दैट मनी द प्रॉफिट इज वेरी लेस,
है ना, इनपुट ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए आपका ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्टीप कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। स्टीप कंपटीशन है ना, स्टीप कंपटीशन मीन्स इन केस ऑफ जूट द अदर फाइबर्स दे केम इन द मार्केट एंड दे आपका दे टेक द डिमांड ऑफ दे कट ऑफ द डिमांड ऑफ जूट का डिमांड उन्होंने क्या कर दिया, कर दिया। कंपटीशन का सामना जूट इंडस्ट्री कर ही नहीं पा रही है। आपको पता होगा कि आपके फादर को पता होगा कि वंस अपॉन टाइम इन इंडिया द HMD ट्रैक्टर वाज वेरी वाज फाउंड बाय वेरी लार्ज अमाउंट, बट नाउअडेज दैट HMD ट्रैक्टर वाज रिप्लेस्ड बाय अदर ट्रैक्टर। द जीप आर बीन रिप्लेस्ड बाय अदर आपका अदर मोबाइल। व्हाई? बिकॉज दे कांट एबल टू फेस द कंपटीशन, दे कांट एबल टू फेस। अब कंपटीशन फेस ना करने के कारण जो है आज उनका डिमांड हमारे यहाँ पे उनका प्रोडक्शन क्या हुआ, लगातार घटता हुआ चला गया। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दैट कि यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहोगे, यू विल बी रिमेन इन द मार्केट। अगर टाइम के अनुसार आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे तो यू विल वैनिश, है ना, आप वैनिश जाओगे, आप लापता हो जाओगे मार्केट से। तो स्टीप कंपटीशन फ्रॉम द मार्केट इन द मार्केट causes the this is also a problem faced by the jute competition। and lastly हमने बात किया था कि आपका सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ चुके हैं। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आने का मतलब ये हुआ कि इंस्टीड ऑफ जूट आप जूट की रस्सी के बदले आप जो है सिंथेटिक फाइबर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो दे रहे हैं। पहले खटिया बीनी जाती थी बाय द जूट बाद से बीनी जाती थी, बट नाउअडेज इन द मार्केट खटियाज आर अवेलेबल मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, है ना। फॉर ट्राइंग एनीथिंग वी नीड वी हैव a demand of jute rope, but nowadays we are just we get आपका the ropes made by the synthetic fiber। दूसरी बात तो छोड़ो, अभी जब आपके यहाँ पे पहले क्या होता था कि फॉर हैंगिंग, है ना, फांसी देने के लिए आपके यहाँ पे स्पेशली जूट की रस्सी बनती थी, बट नाउअडेज अभी 4 लोगों को फांसी दी गई आपके इंडिया में इन द निर्भया केस, और उन सब के लिए जो फांसी का जो फंडा बनाया गया था मेड बाय द जूट आपका वाज मेड बाय द सिंथेटिक रॉप्स, क्योंकि दे आर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, स्ट्रेंथ भी होता है, ड्यूरेबल भी होते हैं, और इसके कारण जो है आपके यहाँ पे जूट की कमी हो रही है। तो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्रीज नाउअडेज। नाउ द अदर टॉपिक इज कि एक्सपोर्ट हम शुरू करते हैं। विच आर द कंट्रीज to whom we export the jute, the goods made by jute। तो पहला देश आपका है USA, दूसरा देश है कनाडा, तीसरा आपका है रशिया, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, देन UK यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द कंट्रीज इन टू whom we export the jute। बेटा एक चीज़ आपको प्रॉब्लम में जाननी पड़ेगी, एक समस्या हमारे देश में जूट की आना स्टार्ट हुई, ये जूट की जो समस्या सामने आई थी, दैट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस? आपको पता होगा कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज। पहला हुआ आपका वेस्ट पाकिस्तान, है ना, और इंडिया, देन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज आपका बांग्लादेश है, 1972 में वो वन में अपने आप को एक कंट्री बनाया। तो ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है, इसके बनने के कारण क्या हुआ कि हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज दे वेंट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश में ढाका, चिटगांव, दीज आर द एरिया विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ जूट। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, दीज एरिया वेंट इन ईस्ट पाकिस्तान। इसके कारण क्या हुआ कि द इंडस्ट्रीज रिमेन इन इंडिया, इन कलकत्ता, दे स्टैंड अप बिकॉज दे कांट गेट इन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉर द रनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना। उनको इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए रॉ मटेरियल उनको मिलना ही बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समस्या का समाधान किया और 2005 एक्ट लाया, और जिसके कारण जो है आपका जो इंडिया में एरिया थे उन एरिया में जूट का उत्पादन करना स्टार्ट किया, और वो एरिया आपके वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम, इन सब एरिया में जूट का उत्पादन करना स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ दैट जो आपकी जूट इंडस्ट्रीज खड़ी हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज आपका पार्टीशन के बाद बंद हो गई थी, उन इंडस्ट्री को दोबारा से क्या किया जाए, वेंट ICU में लाया जाए, थोड़ा हवा दी जाए, थोड़ा ऑक्सीजन दी जाए, सो दैट दीज इंडस्ट्रीज गेट अप।
और इसमें आपकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज ऑफ दैट नाउ डेज आवर कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट हो गया, और इसके अलावा सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस द जूट गुड्स मेड बाय जूट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने आज़ादी के बाद हमें कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन उस नुकसान को हमने भरपाया किया, और आज हम लोग जो है दुनिया में हमारा भी कुछ नाम है इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ जूट। ओके बेटा, आफ्टर जूट द नेक्स्ट इज आवर शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, आपको मैं खत्म करता हूँ कि शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताना, आप यू आर ऑल अवेयर अबाउट शुगर केन। शुगर केन इज द रॉ मटेरियल एंड शुगर इज द थिंग विच इज मेड बाय द शुगर, है ना। गुड़, शुगर, आपका इसके बाद मोलाशर, है ना, जैगरी, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय जूट, ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय शुगर केन। एंड nowadays शुगर इज अ इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, है ना। आज आपकी ज़िंदगी में शुगर एक इनक्रेडिबल पार्ट है। विदाउट शुगर आपको टेस्ट नहीं मिलता, है ना। विदाउट शुगर आप कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, है ना। सेलिब्रेशन करना है तो फिर वी नीड शुगर, कुछ मीठा हो जाए, है ना। जब कुछ मीठा हो जाए तो फिर मीठे के लिए हमें शुगर के तरफ भी जाना पड़ेगा, है ना। नेचुरल शुगर, आजकल का सिंथेटिक शुगर भी बनना चालू हो गए हैं, और बहुत सारे पीपल जो है शुगर से परहेज भी करने लगे। डायबिटीज़ हो गया है ना, क्योंकि काम करना नहीं चाहते हैं और खाना खाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज के फीचर्स क्या है। व्हाट आर द फीचर ऑफ शुगर इंडस्ट्री। पहला फीचर है शुगर इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि द रॉ मटेरियल नीड फॉर द शुगर इज वेरी हाई, वेरी हैवी, एंड द प्रोडक्शन इज आल्सो हैवी, है ना। रॉ मटेरियल भी हैवी है आपका, और उत्पादन भी क्या है आपका, हैवी है। तो पहला ये फीचर है कि इट इज आपका हैवी इंडस्ट्री। सेकेंड इज वेट लूजिंग इंडस्ट्री। इट इज वेट लूजिंग। अगर आप शुगर केन काट के अपने खेत में रखते हो और सोचते हो एक हफ्ते बाद हम शुगर इंडस्ट्री में पहुंचाएंगे, तो क्या होगा आपका वेट लूज होगा, सूख जाएगा शुगर, है ना। तो इसीलिए आपका क्या होता है कि इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। दूसरी बात, अगर हम 18 क्विंटल शुगर केन इंडस्ट्री में डालते हैं तो वी विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ शुगर केन। आप शुगर केन को ट्रैक्टर में लाद के लेकर गए, बहुत भारी भरकम, क्या जितना आप लाद के लेकर गए हो उतना शुगर बन जाएगा? नो। तो क्या हुआ, वेट लूजिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? आपने 18 क्विंटल शुगर लेकर गए, आप 2 क्विंटल चीनी बना रहे हो, तो इट इज वेट लूजिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज आपका पेरिसेबल। पेरिसेबल का मतलब हुआ है नुकसान हो सकता है, सड़ सकता है, खराब हो सकता है वो। क्यों खराब हो सकता है? इफ द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया एंड द शुगर इंडस्ट्री आर वेरी फार अवे। आप शुगर की इंडस्ट्रीज आपका जलालपुर में है, और शुगर को प्रोसेसिंग करने की शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया जलालपुर में है, और शुगर इंडस्ट्रीज आपका अगर फैजाबाद में है, तो फॉर दैट यू हैव टू कवर 100 ऑफ किलोमीटर, और उस 100 ऑफ किलोमीटर में अगर आप जाओगे तो आपका शुगर केन पेरिशेबल भी हो सकता है, खत्म हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सूख सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि वी हैव टू सप्लाई द शुगर केन एज क्विकली एज पॉसिबल टू द शुगर इंडस्ट्री। इसीलिए आप जलालपुर में शुगर के खेत नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको, क्योंकि शुगर मिल्स आर नॉट अवेलेबल हियर। जो काटे पे लेते हैं वो दिन भर लिए, और शाम को या रात को तुरंत आप क्या करेंगे, दे विल सप्लाई द शुगर टू द शुगर मिल। नेक्स्ट इज मेनली लोकेटेड इन दोज एरिया वेयर विच आर द शुगर प्रोड्यूस। तीसरा फीचर आपका यही है कि शुगर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दोज एरिया जहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज लोकेट हैं। ये नहीं कि शुगर इंडस्ट्रीज आपका यूपी में है और शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया आपका महाराष्ट्र में है, नो। बिकॉज फ्रॉम महाराष्ट्र टू उत्तर प्रदेश हमें लाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज आपका वहीं पे होती हैं जहाँ पे शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया होता है। और तीसरा दिया गया है शुगर इंडस्ट्रीज शिफ्ट। दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस कि नाउअडेज वी आर सीइंग दैट कि शुगर इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे पहले नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारी थी, है ना, गोरखपुर, इट वाज द हब ऑफ शुगर मिल। बट नाउअडेज दीज शुगर मिल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्यों, क्या कारण है? इट इज वेरी साइंटिफिक रीजन। बिकॉज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया द शुगर कंटेन वेरी लेस सुक्रोज, ग्लूकोज,
नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो शुगर होते हैं उसमें बहुत कम सुक्रोज होते हैं, और सदर्न पार्ट के जो शुगर केन होते हैं उसमें ज़्यादा सुक्रोज होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लू चलता है, अभी गर्मी के महीना शुरू हो जाएगा तो आप देखो लू चलेगा, बट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं है, लू वगैरह वहाँ पे नहीं चलता। तो अगर लू नहीं चलेगा तो जो शुगर के अंदर सुक्रोज होंगे वो जलेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, है ना, और जिसके कारण जो है उनके अंदर सुक्रोज के कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि शुगर इंडस्ट्रीज आर नाउअडेज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। व्हाट इज द रीजन आई हैड टोल्ड। तो दीज आर द फीचर ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरी बात है कौन कौन से एरिया है शुगर के उत्पादन के लिए। तो शुगर के उत्पादन के लिए आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फॉर दैट उत्तर प्रदेश द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, फॉलोड बाई कर्नाटका। अब देखिए कर्नाटका साउथ में आ रहा है आपका, आंध्र प्रदेश साउथ में आ रहा है, पंजाब नॉर्थ में आ रहा है। देखो पंजाब इज नॉट द नेचुरल प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, नेचुरल प्रोड्यूसर नहीं है शुगर का, वो अपने यहाँ पे अच्छे इरिगेशन के कारण, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो है शुगर की खेती करता है, शुगर केन खेती करता है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी साउथ में आ रहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं वो भी साउथ में आ रहा है आपका, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं वो भी साउथ में आ रहा है, गुजरात आपका नॉर्थ में आता है लेकिन कुछ पार्ट साउथ में आता है, हरियाणा नॉर्थ में आ रहा है और बिहार। तो आप देखिए गुजरात, हरियाणा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर द स्टेट, है ना, और पंजाब को मान लेते हैं, पंजाब तो आर्टिफिशियल है। ये सभी स्टेट आपके नॉर्थ में हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्ट आप देखोगे साउथ में। तो दीज आर द स्टेट in the nowadays the state which are in the south they also produce sugar cane in large amount and sugar industries are located in this area। दूसरा कारण ये भी है कि साउथ में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है they are more strong than the northern part। आप देखिए नॉर्दर्न पार्ट में क्या है कि आपके यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर मिल में शुगर को पहुँचाने के लिए आपको पर्ची का इंतजार करना पड़ता है। पर्ची आपको मिली, आप लाइन का इंतजार करो, लाइन लगाओ, आपने शुगर को दे दिया, आपका दैट पैसा आपके बैंक में अकाउंट में कब आ रहा है, इट दैट टेक लॉन्ग टाइम। बट दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट फेस्ड बाय द फार्मर इन द सदर्न पार्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस कर पाते किसान, जिससे कि वो आपका शुगर केन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ओके बेटा, तो नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट में यही डिफरेंस है कि इन नॉर्दर्न पार्ट cooperative sectors are weak, but in southern part cooperative sectors are very much strong. Second thing is in the northern part because of climatic condition sugar cane contain less sucrose, but in the southern part because of the climatic condition moderate climate sugar cane contain good amount of sucrose। Clear? So these are the area of the production of sugar। Up now what are the factor contributing for the sugar इंडस्ट्री। कौन कौन से कारण हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे लोकेट हुई हैं इन स्टेट में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आपका आंध्र प्रदेश, पंजाब, है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज क्यों लोकेट हुई हैं, व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड दैट। सबसे पहला फैक्टर है कि नियर नेक्स्ट टू द मिल, नियर, ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्रीज वहीं पे लोकेट होगी, शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया वहीं पे लोकेट होगा जहाँ पे शुगर मिल होगी। तो दीज स्टेट्स आर the leading producer of sugar cane and because of that these states have large amount of meal, sugar mill यहाँ पे भी है। इसीलिए पहला कारण ये हुआ कि मिल और शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया का की दूरी जो है बहुत ही कम है। इन दिस द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन दिस स्टेट्स आर वेरी गुड। अब आप पूछोगे कि क्या सर उत्तर प्रदेश में भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, क्या बिहार में भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, तो द आंसर इज यस इन कंपेयर टू द नेक्स्ट फ्यू डिकेड लेटर, है ना, कुछ दशकों के पहले हमारे यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट नाउ डेज आपके यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ दैट शुगर मिल इज ग्रोइंग इन लार्ज अमाउंट। थर्ड इज गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और गुड रोड, एक ही चीज़ है आपका आ जाता है। देन सक्सेसफुल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, देखिए शुगर मिल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। किसान शुगर केन का उत्पादन करेंगे तभी शुगर मिल चलेगी, दे आर इन सीजन इन नेचर, है ना। अगर आपका किसान प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो फिर हमारा जो मिल है दे विल स्टे। इसीलिए शुगर कोऑपरेटिव सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे इन एरिया में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दैट शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन दीज स्टेट।
नाउ बेटा द लास्ट टॉपिक इज व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री, है ना। तो हमने पहला पढ़ लिया कि फीचर क्या क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा कि एरिया कौन कौन से हैं, हमने ये भी बात किया कि इन एरिया में वाई द शुगर मिल्स आर लोकेटेड, और लास्टली हम लोग बात करते हैं विच इज द इम्पोर्टेंट चैलेंज बिफोर दैट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिले इन ट्रांसपोर्टेशन। डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, we can't able to provide the raw material quick and fast to the mill. quick and fast हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं because of bad transportation facilities, है ना। ट्रैक्टर आपके पास ओल्ड मेथड है, वही ट्रैक्टर जो आदमी किसान है उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, he had to hire the tractor because of that उसको नंबर लगाना पड़ेगा and he face problem delay in transportation। दूसरा है आपका सीजन इन नेचर। शुगर केन इंडस्ट्रीज आर सीजनल इन नेचर, दे कांट रन थ्रू आउट द ईयर। अभी आपका शुगर कैन करके जा रहा है तो द शुगर मिल विल रन, बट आफ्टर 2 months दैट शुगर मिल विल स्टे, चुपचाप खड़े जाएंगे। द पीपल हु आर वर्किंग इन द शुगर मिल दे गेट अनएम्प्लॉयड, है कि नहीं। उनको 12 महीने में 3 महीने काम मिलने हैं और 9 महीने उनको बेरोजगार रहना है। तो इसी कारण जो है दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिफोर द शुगर प्रोड्यूसिंग पीपल एज वेल एज द पीपल हु आर लेबर वर्किंग इन द शुगर मिल। तो ये समस्या है आपका, इट इज सीजन नेचर। तीसरा है आपका लो सुक्रोज कंटेंट। इन इंडिया द शुगर कंटेन लेस सुक्रोज। हमारे यहाँ पे हाई यील्डिंग वैल्यू ऑफ शुगर केन की क्वांटिटी बहुत ही कम है ना। हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग एक बार बुआरी किए, फिर पेड़ी की भी खेती करते हैं हम लोग, है ना। और उस जो पेड़ी होती है उसमें आपका शुगर की सुक्रोज के कंटेंट बहुत ही कम होते हैं। इट इज़ बिकॉज कि आपके जो फार्मर है उनका पैसा नहीं है। अगर आपके फार्मर के पास पैसा होता तो फ्रेश शुगर केन आपके मार्केट में सेल करते हैं एंड रोज शुगर केन कंटेंट डाल मतलब सुक्रोज, है ना। तो दिस इज आल्सो ए वेरी बिग चैलेंज बिफोर अस कि आपके यहाँ पे जो शुगर केन होते हैं उसमें लेस सुक्रोज की मात्रा होती है। तीसरा है आपका ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट, हाँ आपके यहाँ पे खेती करने का तरीका बहुत ही पुराना है, वही बैल, है ना, वही आपका की गुड़ाई हाथों से की जाती है, जिससे कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन जो है इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता। इफ गवर्नमेंट विल हेल्प, गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगी तो ही आपके यहाँ पे शुगर केन की उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। मीन्स high yielding value of seed, modern tools and technique, chemical fertilizer. If all these things will be used in our agriculture, then the production will increase. तो आप क्या अभी ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो कि शुगर केन बोने के जो तरीके हैं बहुत ही प्राचीन तरीके को वो अपनाते हैं। और लास्टली जो प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग द बेगर। मीन्स आपने शुगर केन में उत्पादन किया, शुगर केन इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर शुगर केन को इकट्ठा किया। नाउ द बेगर्स, खोइया, बेगर्स का मतलब क्या हुआ, खोइया, वेयर दिस बेगर्स विल बी स्टोर्ड, क्या किया जाएगा उस बेगर्स का, दैट इज वेरी बिग चैलेंज। आप देखिए कि शुगर मिल के सामने जो है बड़े पैमाने पर टीले बने होते हैं बेगर्स के। इफ वी हैव एनी प्रॉपर वे to minimize all these beggars, then we can use those beggars for certain purpose, but we don't have technologies to use all of these things. आज हम फिलहाल आज तो हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक हम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। आज हम लोग इसका यूज़ करते हैं फॉर आपका फॉर मेकिंग मैन्योर, फॉर मेकिंग पेपर, है ना, फॉर यूजिंग इन द ब्रिक्स केन। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल और भी करना चाहिए। अगर हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी जैसे निकालते हैं कि जिससे कि बेगर को मिनिमाइज कर लें तो आवर फार्मर विल गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। ओके बेटा, सो इन दिस वे दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इन इंडिया। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जूट इंडस्ट्रीज एज वेल एज शुगर इंडस्ट्रीज टुडे। द क्वेश्चन ऑफ 5 and 5 number, these questions always come in the log form, तो आप लोग इसके बारे में लिखेगा। इन टुडे when you see the video, you try to make you have tried to make a short note on the jute industries as well as on the sugar industries, and also use the map to locate the sugar producing area. Okay, so tomorrow I will come from with the next topic. Till then, goodbye.